Welcome back, students. Today we will going to discuss the order of the various types of the reactions. First of all, we will take some examples. Okay, the first example is the first order reactions like decomposition of H2O2, decomposition of H2O2 in pans of iodide ion follows first order kinetics. So if you want to write, you will write like that in this case rate will be equal to K concentration of H2O2. Similarly, in case of decomposition of sulfuryl chloride, this is called sulfuryl chloride. Decomposition of sulfuryl chloride gives you SO2 and Cl2. In that case also rate follows first order kinetic. Order is power, yes or no? Power is 1, so order is 1. Okay, decomposition of nitrogen pentoxide, it also follows first order kinetic. What is order? Power of the reactant concentration, in this case 1 1 1. Okay, since we do not represent 1, so all these are what? Various example of first order reactions. Okay, order means that on which concentration the rate depends. Okay, the next is about what? The next is about decomposition of ammonium nitrite in aqueous medium, gives you N2 and H2O2. Okay, so these are various examples. All the examples you must have a pretty much knowledge about that, because these questions generally asked in examinations. Okay, now in the next case we will discuss about the reactions in which fractional order is followed, like decomposition of acetaldehyde. Decomposition of acetaldehyde follows fractional order. The order is 3/2 in this case. Okay, so in that case the order is 3/2. Let us suppose formation of what? Formation of HBr. फॉर्मेशन ऑफ जो HBr है वो भी फ्रैक्शनल ऑर्डर है. वो भी क्या है? यहाँ पर फ्रैक्शनल ऑर्डर है यहाँ पे. तो इस केस में रेट की जो वैल्यू होगी क्या होगी K H2 पावर 1 Br2 पावर हाफ. मैं दोबारा बोल दूँ, ये एक्सपेरिमेंटली निकाली है कि नहीं. अब इनके पावर को प्लस कर दीजिए, 1 प्लस हाफ, कितना ऑर्डर आएगा? 3/2. क्लियर नहीं क्लियर? तो ये सब एग्जांपल इसके हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर के. क्या हैं? फ्रैक्शनल ऑर्डर के. तो याद रखिए, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एंड फॉर्मेशन ऑफ 2HBr, ये एग्जांपल किसके हैं? ये एग्जांपल्स हैं आपके फ्रैक्शनल ऑर्डर के. आर यू ओके विद द सिचुएशन? ओके. Now, what is zero order reaction? Zero order reaction is that reaction in which rate of the reaction does not depend upon any of the concentration. Okay. For example, if ammonia has been taken on the surface of platinum at about 1100 Kelvin, it will decompose into what? N2 plus 3H2. All are gases here. Okay. Sure about that? So here the rate of decomposition does not depend upon concentration of ammonia. Okay, when the rate of the reaction does not depend upon concentration of any of the reactant, it is called as zero order. Okay. Similarly, what you will have? You will have decomposition of Hi over gold surface. Okay, if you taken 2Hi over a gold surface, then what will happen? It will decompose into this. Okay. Similarly, formation of what? Formation of HCl in pans of ultraviolet light
is also what is also zero order reaction. So decomposition of ammonia, okay, then decomposition of hydrogen iodide, then formation of HCl. All these are what? All these are zero order reactions. All these are zero order reaction. Many of the photochemical reactions are examples of zero order reaction also. Okay. So similarly, the decomposition of NO2 to nitrous oxide and oxygen is second order kinetics. Similarly, H2 plus I2 gives you 2HI is a second order kinetics. So these are examples must be known to you. Third order and higher order reactions are rare, and all these reactions they will be present in your notes. So please note down all those examples. So these are various examples of various types of order of the reactions. Okay. So please go through them. These are the first order examples. These are the fractional order examples. Okay. Now these are zero order examples. और लास्ट में क्या है आपके पास सेकेंड ऑर्डर के एग्जांपल्स हैं. ये सारे एग्जांपल आपको ये खासकर जीरो ऑर्डर के और फर्स्ट ऑर्डर के आपको याद करने हैं. क्लियर. उसी के एग्जांपल ज़्यादा आपको आएंगे, बाकियों के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. के की यूनिट मैं आपको कल बता चुका हूँ. यूनिट ऑफ के डिपेंड्स अपॉन व्हाट? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. आइदर इट इज मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स, और इट इज एटमॉस्फेरिक 1 - n second inverse. So these two are values of k, values of k there. Okay, units of k, sorry, but they are units of k, units of k. I am repeating once more, units of k. Are you okay with the situation? Nice. देखिए, अब आपको समझना क्या है, आपको समझना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है. हम ऑलरेडी कल की क्लास में कर चुके हैं इसको. ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ द पावर्स ऑफ ओनली दोज कंसंट्रेशन ऑन विच रेट ऑफ द रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स. मान लीजिए, कंसिडर कर लीजिए कि कोई रिएक्शन हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी गिव्स यू प्रोडक्ट. तो रेट की वैल्यू है के, ए पावर 2, बी पावर 1, सी पावर 0. तो जो अल्फा की वैल्यू है, जो ऑर्डर ऑफ ए है वो 2 है, जो ऑर्डर ऑफ बी है वो 1 है, और जो ऑर्डर ऑफ सी है वो 0 है. इसका मतलब क्या हो गया? सी की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करता. ठीक है. नहीं, क्या है? If order is 0 for a reactant, then rate of the reaction does not depend upon that कंसंट्रेशन. देखिए, आप बात समझ लीजिए, ए, बी और सी के बिना रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन सी की कंसंट्रेशन डिक्रीज या इंक्रीज करने पर रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सी होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. लेकिन कितना होना चाहिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं. तो चाहे आप सी की कंसंट्रेशन को घटा दें चाहे बढ़ा दें, उससे क्या होगा? आई एम रिपीटिंग वंस मोर, क्योंकि सी का ऑर्डर 0 है. इसका मतलब क्या हुआ? वेदर यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सी और डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सी, इट डज नॉट इफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट. आर यू ओके विद दैट? ए के केस में ऑर्डर 2 है. इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर 2 का मतलब ये है कि अगर आप ए के कंसंट्रेशन को डबल करेंगे
तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। ए के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स करेंगे तो रेट जो है 9 टाइम्स हो जाएगा। और बी का क्योंकि ऑर्डर 1 है तो बी को अगर कंसंट्रेशन को आप डबल करेंगे रेट डबल होगा, बी के कंसंट्रेशन को हाफ करेंगे रेट हाफ होगा, बी के कंसंट्रेशन को आप डबल ट्रिपल करेंगे रेट ट्रिपल होगा। तो इसमें टाइम्स पावर 1 है। आर यू ओके विद दैट? अब इसको दोबारा से हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो पहले केस में क्या करेंगे हम, पहले केस में बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज 2 टाइम्स कीपिंग द अदर कंसंट्रेशन कांस्टेंट, देन क्या होगा। अब आपने ए की तो रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी के ए स्क्वेयर बी सी। ये हमारे पास ऑर्डर आ गया मान लीजिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपने ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो अब रेट क्या हो जाएगा, अब रेट हो जाएगा के ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वेयर इंटू बी इंटू सी। आंसर क्या आ जाएगा 4 के स्क्वेयर 4 के ए स्क्वेयर बी सी 0। तो सी जो 0 है यहाँ पे तो उसको आप भूल जाएंगे, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे के ए स्क्वेयर बी, क्योंकि सी 0 है यहाँ पे, सी का यहाँ पे 0 है। तो कितना आ जाएगा 4 के ए स्क्वेयर बी बिकॉज सी 0 है। श्योर अबाउट दैट? तो इसमें क्या हो गया, ये रेट 1 था, ये रेट 2 है। तो अब चेक कीजिए रेट 2 की वैल्यू क्या आ रही है 4 टाइम्स रेट 1। क्लियर अंडरस्टूड? नाउ अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या रहा है वो, इफ concentration of A is doubled but concentration of B becomes half while C becomes 2 times, न्यू रेट क्या है। अब R3 में क्या किया गया, R3 में जो A है वो डबल कर दिया गया है, जो B है वो हाफ कर दिया गया है, और जो C है वो 4 टाइम्स कर दिया गया, 4 टाइम्स। C इज व्हाट, C इज 4 टाइम्स। नहीं, क्योंकि इसका ऑर्डर 0 है तो इसको 4 टाइम्स कर दो, 10 टाइम्स कर दो, 11 टाइम कर दो, हाफ टाइम कर दो, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आंसर क्या आ गया 4 ए स्क्वेयर इंटू बी बाई 2। कितना आंसर आ गया ट्वाइस के ए स्क्वेयर बी। तो कितना आ गया 2R1। तो अगर आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर अगर आपने ए को डबल किया, बी को हाफ किया और सी को भी डबल किया, तो सी के डबल करने पर, ट्रिपल करने पर, हाफ करने पर, 1/3 करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 0 है। क्या ऑर्डर 0 है। और यू ओके विद द सिचुएशन? ठीक है। वो क्या दे रहा है यहाँ पे, देखिए ए प्लस बी आपको प्रोडक्ट दे रहा है, क्या दे रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट दे रहा है। जो रेट है वो यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है, दैट के ए पावर 1 बी पावर हाफ। वो कह रहा है अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए को हमने डबल कर दिया है और बी को 4 टाइम्स कर दिया है, तो बताइए नया ऑर्डर क्या है। तो अब चेक कीजिए R2 क्या हो जाएगा, कह रहा है ए बिकम्स डबल, 2 टाइम्स कर दिया आपने, और जो बी है इट बिकम्स 4 टाइम्स। तो बी को हमने कितना किया, सॉरी बी को हमने किया यहाँ पे 4 टाइम्स। कितना किया यहाँ पे 4 टाइम्स। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, आंसर आ जाएगा के इंटू ट्वाइस ऑफ ए इंटू ट्वाइस बी हाफ। तो आंसर आ गया 4 के ए
बी हाफ, ये क्या है R1, चेक कर लीजिए, ये R1 के इक्वल कितना आ गया 4 टाइम्स R1, तो रेट टू कितना आ गया 4 टाइम्स R1। इजी टू इजी, ठीक है ना, समझ आ गया बेटे आप लोगों को ये बात। देखिए अब हमने क्या सीखना है यहाँ पर कि इनिशियल रेट हम फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? इनिशियल रेट। तो इनिशियल रेट मेथड है उसमें क्या होगा कि हम पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लेंगे बाय टेकिंग द फ्रेश कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और उससे हम एक ऑर्डर या रेट ऑफ द रिएक्शन निकालेंगे। फिर हम अगर एक रिएक्टेंट है या 2 रिएक्टेंट है या 3 रिएक्टेंट है अगर रिएक्शन में, तो बारी बारी से हम हर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे और बाकी सबको वेरिएबल करवाएंगे, बाकी सबकी वैल्यू को चेंज करवाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हम किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हर एक एक्सपेरिमेंट में सेम लेंगे। जैसे मान लीजिए A और B है, 2 रिएक्टेंट है, तो कुछ केसेस में हम क्या करेंगे, कुछ केसेस में हम A को काउंट कर देंगे, ठीक है, और B को पहले लेंगे 1 मोल पर लीटर, फिर लेंगे 2 मोल पर लीटर, फिर लेंगे 0.7 मोल पर लीटर, फिर लेंगे 0.5 मोल पर लीटर। A की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी 1 मोलर पे, ठीक है ना। उसी तरह फिर क्या करेंगे, B को कांस्टेंट कर देंगे 1 मोलर पे, और A की वैल्यू करेंगे वेरिएबल में, कभी 0.5 लेंगे, कभी 1 मोलर लेंगे, कभी 0.7, कभी 1.5, कभी 2 मोलर, कभी 0.01 मोलर, कभी 0.002 मोलर। सो वी विल टेक डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B टू अराइव एट ए कंक्लूजन, ठीक है। तो हर एक केस में हम एक्सपेरिमेंटली क्या निकालेंगे, हम रेट निकालते जाएंगे, और फिर उन रेट के वैल्यूज का कंपैरिजन करके क्या करके उनको कंपेरिजन करके हम क्या निकालेंगे, एक डिसीजन पे लेंगे कि ये ऑर्डर क्या आ रहा है रिएक्शन का, ठीक है जी। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, चेक करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है। अब इस रिएक्शन से हम करेंगे क्या, इस रिएक्शन से हम ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो क्या ऑब्जर्वेशन देखा, देखिए आप चेक करेंगे तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ A कांस्टेंट है, लेकिन आप चेक करेंगे तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग B वेरिएबल है। इन दोनों में क्या है, B कांस्टेंट है और सामने A क्या है, वेरिएबल है। तो फॉर ऑर्डर ऑफ क्या करेंगे, फॉर ऑर्डर ऑफ A टेक कंसंट्रेशन ऑफ B कांस्टेंट। तो मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर आपके पास 1 आ गया और 2 आ गया। तो मान लीजिए रेट की वैल्यू क्या है, K प्रोपोर्शनल टू A पावर अल्फा B पावर बीटा, जहाँ पर अल्फा है ऑर्डर ऑफ A और बीटा है ऑर्डर ऑफ B। तो R1 की वैल्यू क्या आ रही है, चेक करिए। तो R1 की वैल्यू 0.01 की पावर अल्फा, 0.01 की पावर बीटा, ठीक है जी। और R2 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, तो हो रही है 0.02 की पावर अल्फा, 0.01 की पावर बीटा। तो अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग 1 and 2। क्लियर, श्योर अबाउट दैट। तो हम उसको अब कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, R1 की वैल्यू आ रही है 5 × 10⁻³ डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय है R2 कितनी वैल्यू है, 2 × 10⁻², ठीक है। तो A की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे चेक करेंगे आप, तो यहाँ पर चेक कीजिए 0.0 और 0.2 कितना आएगा, 0.01 अल्फा, 0.02 पावर अल्फा, यहाँ पे 0.01 बीटा डिवाइड बाय 0.01 बीटा। ये कट जाएगा आपस में, भी वैल्यू सेम है।
तो आंसर आएगा 1/2 ऑफ अल्फा। दिस विल कैंसिल आउट इज, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 5/20। तो 5/20 कितना आ गया यहाँ पे? तो 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 की पावर अल्फा। तो ऑर्डर कितना आ गया? ऑर्डर आ गया 2। कितना आ गया यहाँ पे? 2। ऑर्डर इज 2। तो ऑर्डर यहाँ पर 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। श्योर अबाउट दैट। अब क्या करेंगे आप लोग? अब आप वैल्यू निकालेंगे बीटा की। तो रेट वहाँ पर क्या होगा? आप लेंगे फॉर ऑर्डर ऑफ बी टेक कंसंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट। किस में लेंगे? एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 में। तो सीधी सी लिखूंगा 2 में वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10⁻²। 3 वैल्यू क्या है? 6 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पर ए की वैल्यू तो कांस्टेंट है जो हमारी निकली है। वैसे अल्फा कितना निकला? 2 निकला, ठीक है। लगा भी देंगे, फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0.01 की पावर बीटा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। दोबारा समझिए ध्यान से, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 0 पॉइंट, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा? 1/3 बीटा इज इक्वल टू 1/3। तो ये 1/3 और 1 आ गया आंसर। तो बीटा की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब है अल्फा ऑर्डर ऑफ ए 2 आ गया और ऑर्डर ऑफ बी 1 आ गया। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया? ओवरऑल ऑर्डर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 + 1 = 3। तो इक्वेशन कौन सी है? ये थर्ड ऑर्डर की। क्या बेटा? ये थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है। आपको क्या निकालना है? अब रह गया निकालने के लिए द वैल्यू ऑफ के। क्या रह गया? वैल्यू ऑफ के, वो हम निकालते हैं। तो अब टेक एनी वन एक्सपेरिमेंट, टेक एनी वन ऑब्जर्वेशन। अब चाहे 1 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा R1 = K, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। A की पावर 2 है और B की पावर 1 है। ये आपने भी निकाला एक्सपेरिमेंटली। तो रेट यहाँ पर क्या है? 5 × 10⁻³ K पता नहीं है। A की वैल्यू है 10⁻² का स्क्वायर, B की वैल्यू है 10⁻² का 1। तो K की वैल्यू 10⁻6 आ गया। तो K की वैल्यू नहीं 5 × 10⁻3, क्योंकि जब ये नीचे जाएगा डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो K की वैल्यू नहीं 5। देखिए अभी यूनिट पूरी नहीं हुई, तो K की ऑर्डर कितना है इसका? थर्ड ऑर्डर है ना। तो थर्ड ऑर्डर में वैल्यू क्या होगी? देखिए मोल पर लीटर 1 - 3 सेकेंड इनवर्स। तो क्या होगा? लीटर स्क्वायर मोल -2। क्या होगा? लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकेंड इनवर्स, ठीक है जी, सेकेंड इनवर्स। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? के की वैल्यू। तो आप ध्यान से चेक कर लीजिए, ठीक है। ये के की वैल्यू है, आपने ऑब्जर्वेशन नंबर 1 से ली है। आपने क्या शुरू किया था? आपको ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या गिवन था कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 में कंसंट्रेशन ऑफ जो आपका ए है कांस्टेंट है, और 1 और 2 में कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट है। तो इन दोनों कंसंट्रेशन को 1/1 कांस्टेंट करके हम ऑर्डर ऑफ ए और बी निकालेंगे। तो ऑर्डर ऑफ ए के लिए हमने बी की 2 यूनिट ली, दैट इज कौन सी? 1 और 2। तो उससे हमने R1 R2 निकाल लिया, दे रखा है क्वेश्चन में।
इनकी वैल्यूज़ को डिवाइड करके आपस में हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली, दैट इज़ 2। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, सिंपल मैथ्स इन्वॉल्व है। ठीक है, क्लियर है ये बात आपको? श्योर? तो फिर आगे चलते हैं। तो फिर उसके लिए फिर बीटा को करना पड़ेगा। बीटा में क्या करना पड़ेगा, हमें कंसंट्रेशन ऑफ एक कांस्टेंट लेनी पड़ेगी जो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 में है। तो 2 और 3 में, 2 और 3 में कभी एक वैल्यू सेम है, इसलिए कट जाएंगी आपस में। ठीक है जी। तो आपके पास ऑर्डर कितना आ गया, 1। तो जो ऑर्डर आया आपके पास उसमें रिएक्टेंट ए का ऑर्डर 2 है और रिएक्टेंट बी का ऑर्डर 1 है, इसलिए ओवरऑल ऑर्डर 3 है। जब ओवरऑल ऑर्डर 3 है तो सबको मालूम है यूनिट्स ऑफ के डिपेंड्स अपॉन व्हाट, यूनिट्स ऑफ के डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्या किया, आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स को निकाल लिया और के का आंसर निकालने के लिए आपने इस्तेमाल किया यहाँ पर रेट 1 का। ठीक है ना? श्योर अबाउट दैट? इजी था ना? टू इजी। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमने करना क्या है, आपके पास यहाँ पर एक डाटा गिवन है 2NO2 रिएक्ट विद F2 टू गिव यू नाइट्रोसाइल फ्लोराइड। ठीक है जी। तो अब ये आपके पास आपको निकालना है इसका ऑर्डर क्या है और इसकी के की वैल्यू क्या है, ये आपको निकालना है। ठीक है, और आपको ये बताना है व्हाट इज रेट व्हेन क्या है, व्हेन NO2 की वैल्यू है 0.5 मोलर और F2 की वैल्यू होगी जब 0.6 मोलर। तो इस रेट को निकालने के लिए आपको 3 चीज़ निकालनी पड़ेगी। नंबर 1 अल्फा, ऑर्डर ऑफ NO2, बीटा, ऑर्डर ऑफ F2, K दैट इज रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज निकालने के बाद आई कुड अराइव एट द आंसर। ठीक है, तो अब हम आंसर की ओर चलते हैं। आर यू श्योर? प्रीटी मच श्योर। ठीक है, तो आप चेक करें ध्यान। देखिए ऑर्डर ऑफ NO2 क्या करेंगे आप, अब चेक करेंगे F2 कंसंट्रेशन कहाँ पर कांस्टेंट है। तो आंसर है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में और 2 में, 1 में और 2 में। तो जो रेट 1 है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो है 0.2 पावर अल्फा और 0.05 बीटा। और जो रेट 2 है ये प्रोपोर्शनल टू किसके है, 0.4 अल्फा, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये बीटा। तो उसको डिवाइड कीजिए R1 बाय R2 को। तो R1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 इंटू 10 पावर -3, R2 है 1.2 10 पावर -2, 0.2 पावर अल्फा डिवाइड बाय 0.4 पावर अल्फा, और यहाँ पर है 0.05 बीटा डिवाइड बाय, तो ये तो 1 हो गया कट के, छोड़ दीजिए इसको। तो अल्फ़ा बच गया आपके पास 1/2 की पावर अल्फ़ा, और ये बन गया C/12 दैट इज 1/2। तो ये हो गया 1/2 की पावर 1 दैट इज, इट इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 1। ऑर्डर ऑफ NO2 1 आ गया। कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ NO2 आपके पास 1 आ गया। श्योर अबाउट दैट? क्लियर? अब नेक्स्ट हमें करना क्या है, अब आपके पास आपको एक्सपेरिमेंटल में 2, अब यहाँ पर कांस्टेंट NO2 कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास अब अल्फा की वैल्यू आ चुकी है तो ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब लेंगे R2/R3। तो R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो ये R2 की वैल्यू है यहाँ पे 1.2 इंटू 10 पावर -2, R3 इतना 4.8 इंटू 10 पावर -2।
अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू अभी अभी आई है यहाँ पे, अब चेक कीजिए। और बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.05 बीटा और 0.1 पावर बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो यहाँ पर आई है आपके पास, देखिए कितनी आई है 1, यहाँ पुट कर देंगे आप, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/2 पावर अल्फ़ा, ठीक है, 5/10 पावर बीटा। तो ये 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/2 बीटा, तो ये कट गया, कितना आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बीटा, तो बीटा 1 आ गया। तो अल्फ़ा 1 है और बीटा भी 1 है। क्लियर आ गया आपकी बात। तो जब अल्फ़ा और बीटा दोनों 1 हैं तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया, ओवरऑल ऑर्डर आ गया 2। तो रेट की वैल्यू क्या आ गई, के ए पावर 1 बी पावर 1। तो ए यहाँ पर क्या है, आंसर है NO2 पावर, और बी की वैल्यू कितनी है F2 पावर। तो रेट 1 की वैल्यू यहाँ पे 6 इंटू 10 पावर -3, के आपको निकालना है, ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 इंटू 10 पावर -1 की पावर 1, ठीक है जी। F2 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 पावर -2, 10 पावर -3, 6 इंटू 10 पावर -3। तो की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे आपके पास 6 इंटू 10 पावर -1, 6 इंटू 10 पावर -1, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास के की वैल्यू, किसकी आ गई के की वैल्यू। आर यू श्योर अबाउट दैट। क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर 2 है तो ये होगा लीटर मोल इनवर्स मिनट इनवर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, आप मोल पर लीटर 1 - n मिनट इनवर्स यहाँ पर है, तो N2 रखिए और आंसर निकाल लीजिए, ठीक है जी। ये आंसर के का है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या इसमें है कि आपको रेट निकालना है जब हमारे पास NO2 और F2 की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। तो हमारे पास वैल्यू कौन सी गिवन है, चेक करते हैं, ठीक है जी। वो कह रहा है कि आप रेट निकालिए कि हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि NO2 की पावर 1 F2 की पावर 1, तो के है 6 इंटू तो अगर आप ये वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे 1/1 तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। आप ध्यान से चेक कर लीजिए कि रेट निकालना है जब आपको क्या दे रखा है NO2 और F2 की वैल्यू, NO2 और F2 की वैल्यू गिवन है। आर यू श्योर अबाउट दैट। इजी, दैट इज टू इजी। मान लीजिए रिएक्शन है 2A गिव्स यू प्रोडक्ट, ऑर्डर वैल्यू 1 है, तो रेट की वैल्यू क्या होगी -1/2, दैट इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो 2 ऊपर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स रेट इक्वल टू दिस। तो रेट की वैल्यू क्या है, रेट की एक वैल्यू और भी है क्योंकि ऑर्डर 1 है, तो के ए पावर 1, के ए पावर 1, ये भी रेट की वैल्यू है। तो जहाँ पर रेट है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप के ए वैल्यू, और जहाँ पे रेट है वहाँ पे लिख सकते हैं आप -1/2। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है और ये भी वैल्यू सेम है। क्लियर आपको ये बात, मतलब हमने 2 और 1 को इक्वल कर दिया है। आर यू श्योर अबाउट दैट। इजी, दैट इज टू इजी।